Hello everyone, welcome to my class of Sachin Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept. So I'm back with a new point from your chapter Electromagnetic Induction, and this class is all about AC generator. Here is the main points of this class, that is the principle, construction and the working formula. So let's begin the class by recalling the previous lectures. In all those previous lectures of this channel, of this chapter, we were discussing about the Faraday's experiment, Faraday's law of electromagnetic induction, then self-induction, mutual induction, and also we have covered some interesting point of that inductance and mutual inductance. So any one of you want to learn those previous concepts, do one thing, subscribe my channel and watch the playlist of it, where you will see all the previous portions of this chapter as well as the whole portion, whole syllabus of the 12th science are available in that. So you can enjoy, you can learn all that previous concept of the 12th science. So let's begin the class and get ready to fall in love with the physics, because this is a channel where you can feel the concept of physics and then slowly you will realize that you are in love with physics. So be ready to fall in love with it. So this class is all about AC generator. See, when the things come in our mind, AC generator, then the first thing you should remember that AC generator is a kind of device, which is a type of machine, a type of device, and basically it converts the mechanical energy into the electrical energy. But before we focus completely on AC generator, first of all we should clear this thing, AC current and DC current. For example, if I am giving you a source, here we have a conductor, and what happens to this conductor when I connect this conductor with a simple battery? See, यहाँ पे एक बैटरी वोल्टेज है V वोल्टेज की, एंड अगर आप इस कंडक्टर को V वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो क्या होता है कि ये जो प्लस और माइनस है इसकी वजह से करंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होकर के प्लस की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, प्लस के साइड आएंगे और करंट का डायरेक्शन फिक्स रहेगा. देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस टाइप ऑफ सोर्स इज कॉल्ड डीसी सोर्स एंड द करंट which is produced by that DC source is called DC current. But जरा सोचिए, अगर इस प्लस माइनस की जगह पे I am using another source which is called your AC source, this is the symbol of AC, what will happen after some few amount of frequency, like if I say कि भाई इसकी जो frequency है वो 50 Hz है, so 1 upon T, I think that is frequency and T is the time period. So after a particular value of the time, this plus becomes minus and this minus becomes plus. So initially the current was like that. Then when this terminal becomes minus, the current will flow in this direction. So first it will move in that direction, and then because of the change in polarity, the current will move in that direction. So when the direction changes, that is a kind of AC current. So in this machine we will get the kind of current which is your AC. AC जनरेटर जो आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं उसमें DC करंट नहीं आएगा, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, बिकॉज पोलैरिटी क्या होगा, चेंज होगा. तो अगर प्लस माइनस माइनस प्लस चेंज हो रहा है, सो 100% डियर स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि AC जनरेटर है, सो वी विल गेट द काइंड ऑफ करंट विच इज कॉल्ड योर AC. सो लेट्स सी कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है. इसका पहले प्रिंसिपल जान लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, और फिर हम इसके वर्किंग फार्मूला तक पहुंचेंगे. लेकिन पहले आपको मैंने बोला कि जो सेंटेंस था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस, इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बिकॉज इफ यू फोकस ऑन द नेम जनरेटर, क्या 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 देता है, क्या यार, वो आपको सिंपल है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, बट डायरेक्टली तो एनर्जी आपको मिलने वाली नहीं है. Directly you cannot get the energy. There will be some dissipation of the energy. So here what happens when you do some work, when we are giving some mechanical energy to this device, then you will get electrical energy. डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है ना, यहाँ पे नीचे एक हैंडल लगा है. इस हैंडल को जब आप रोटेट करोगे तो कुछ एक्शन होगा, और वही एक्शन आपको समझना है. तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस. Principle क्या है, what is the principle? It converts the mechanical energy into electrical energy. It converts the mechanical energy into the electrical energy, and when you connect some galvanometer, then it will start showing some deflection, and whenever there is a deflection in galvanometer, we can say कि भाई यहाँ पे करंट है. ओके तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि पहला पॉइंट हमने क्या बोला. उसके बाद हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, देन विल कम टू इट्स पॉइंट हाउ इट वर्क्स. कंस्ट्रक्शन देखिए सिंपल सा सेटअप है. यू कैन सी वी हैव टू स्ट्रॉन्ग स्टेशनरी मैग्नेट ऑफ डिफरेंट पोल्स लाइक नॉर्थ एज वेल एज साउथ. दिस नॉर्थ एंड साउथ विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लाइक from north to south. You can see these lines are representing the magnetic field lines. ये सारी लाइन हमें magnetic field lines को शो कर रही है. Okay, so in this magnetic field lines we will take a rectangular coil named
A, B, C and D. It is like rectangular coil. I can show you this box. This is a kind of rectangular coil, namely A. This point is B, C and D. You should imagine, because जितना ज़्यादा आप imagination के साथ study करोगे physics को, आप उतना ही ज़्यादा physics के साथ connect हो जाओगे. 100% you will realize कि आपको इश्क मोहब्बत हो गया है. Concept को समझने की कोशिश करिए. Diagram पे ज़्यादा मत जाओ. Imagine करो. यहाँ पे एक North Pole है इस तरफ, ठीक है? There is a kind of North Pole. और यहाँ पे है South Pole. So what will happen? This will create a huge amount of magnetic field lines. बहुत ही ज़बरदस्त amount of magnetic field lines create करेगी. तो जो नॉर्थ से निकल रही है और कहाँ जा रही है? Yes, साउथ में. इस नॉर्थ से साउथ वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैंने ये लिया रेक्टेंगुलर कॉइल विद सो मेनी टर्न्स. विद सो मेनी टर्न्स का मतलब है कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया वायर, फिर उसको इस तरह से बैंड करते चलेगा, इसके ऊपर वाउंड करते चलेगी. टेक अ लॉन्ग वायर, इंसुलेटेड वायर, एंड वाउंड दैट वायर ऑन टू दिस रेक्टेंगुलर शेप. So you can say we have a rectangular coil with so many turns, and you have to connect, you have to place this rectangular coil into this parallel magnetic field lines like in this diagram. ठीक है? उसके बाद क्या? You can see this end of that one of the end or one of the side of this rectangular coil is connected with this kind of object. This is called ring, slip ring. Slip ring means it will rotate. It is like a cylindrical pipe. It is like a cylindrical pipe. तो ये ऐसे है और उसके थोड़ा सा ही आगे इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ ऐसे इधर, ठीक है, इसके थोड़ा सा ही आगे एक दूसरा भी स्लिप रिंग है. और ध्यान से समझो, इसको इमेजिन करना है. मुझे इमेजिन कराने के लिए, हाँ ठीक है मैं करता हूँ. वेट. अरे वाह, मेरे पास आ गया. जोरदार स्लिप रिंग है. अब मैं आपको ऋतिक रोशन के आवाज़ में पढ़ाऊँगा. ये देखो, ये स्लिप रिंग ही तो है. ओके, लीव इट, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक. मैंने क्या कहा कि जो साइड ए बी है और फिर वो वायर के साथ टर्न्स लेते हुए जो साइड सी डी है वो स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट है. स्लिप रिंग क्या है? एक सर्कुलर पाइप है, सिलिंड्रिकल सर्कुलर पाइप. देखो इस तरह का, यू कैन सी, ये मैंने कागज़ को मोल्ड कर दिया और ऐसा शेप बन गया. तो होगा ये कि एक जो साइड ए बी है वो इसके साथ कनेक्ट है यहाँ पे, यानी जब कोयल रोटेट होगा तो ये स्लिप रिंग ऐसे रोटेट होगी. और इसके बीच में जो गैप है, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप से होता हुआ और यहाँ से निकल करके ये वाला पाइप, ये देखो, ये गैप में जो गया अंदर की तरफ, और ये अंदर की तरफ होते हुए दूसरे स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट हो गया. मतलब इसी के जैसा एक और यहाँ पे, उसके साथ कौन कनेक्ट है? उसके साथ कनेक्ट है रिंग 2. सो वी हैव टू टेक 2 डिफरेंट स्लिप रिंग, नथिंग बट अ काइंड ऑफ you can say cylindrical circular ring. So when this coil rotates, this slip ring will rotate. ठीक है, ये पहली वाली रिंग के साथ कौन कनेक्ट था? ए बी, और उसके अंदर से दूसरा वाला एंडिंग गया, ये वाला एंडिंग, ये देखो ए बी के साथ कनेक्ट है, और ये वाला जो एंडिंग है वो सी डी के साथ अंदर घुसा और फिर बाहर निकल के रिंग 2 के साथ कनेक्ट हो गया. मतलब दोनों घूमेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. मतलब एक घूमेगा तो स्लिप रिंग 1 भी घूमेगा और उसके साथ जो दूसरा वाला अटैच्ड है, स्लिप रिंग आपस में कनेक्ट नहीं है बट अंदर से एक लाइन गई हुई है, ये लाइन वो भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा. नाउ there is another part of this AC generator that is called carbon brushes, and these brushes are nothing but they are the kind of metals, you know, and they can provide the electrical connection between this you can say load, or you can say the galvanometer as well as the slip ring. मतलब यहाँ पे जब ये स्लिप रिंग रोटेट हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पर एक कार्बन ब्रश है, राइट. कार्बन ब्रश एक मेटल हो गया, और वो जब ये घूम रहा है तो उसके साथ क्या, वहाँ की जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, वो सीधा कलेक्ट करके यहाँ पे लगे हुए गैल्वेनोमीटर को या यहाँ पे लगे हुए लोड के साथ कनेक्ट है. सो यू कैन से कि भाई ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसके बीच में? रिंग और हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बीच में. सो फिर से आई एम गोइंग टू रिकॉल ऑल दैट पॉइंट्स कि कंपोनेंट्स में क्या क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेशनरी मैग्नेट, नॉर्थ साउथ. This will provide a magnetic field lines, and in this magnetic field lines you have to take a rectangular coil, armature, so many turns with so many turns, and connect with the simple slip rings, 2 slip rings, and the connection of that slip rings with that carbon brushes is connect with the galvanometer. And there is, you know, there is a handle, rotating handle. So when you rotate this, this complete will be rotate. This complete construction will be rotate. Okay, so this is done from the side of that construction. Now we'll focus on how it will work. It will work amazing principle. It will work on an amazing principle that is called electromagnetic induction. What was it? Electromagnetic induction क्या था?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ इस तरह से था कि भाई अगर आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ले रहे हो तो क्या आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर सकते हो? यस। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से करंट को जनरेट नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज ला के ही आप करंट को जनरेट कर सकते हो। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही एक्शन होगा। सी व्हाट विल हैपन, आई हैव अ काइंड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल and when initially this coil is kept in a magnetic field like this, few field lines will link with it. Now if this coil starts rotating in the magnetic field, then more field lines will start linking with that. हो क्या रहा है कि अगर ऐसे है ना तो कुछ ही फील्ड लाइंस इसके साथ, जो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, जो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, बहुत ही कम फील्ड लाइंस उसके साथ लिंक है। लेकिन अगर ये ऐसे होने के बदले ये अगर ऐसे हो जाए तो बहुत सारे फील्ड लाइंस को स्ट्राइक कर देंगे। इनिशियली कितना था फील्ड लाइन? 0 या फिर 1 सपोज कर लो। रोटेशन हुआ तो कितना हो गया? तो 1 से लेकर के कितना हो गया? 10। दिस इज अ काइंड ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, 100% देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? phi is equal to what? B into A, magnetic field into area. So whatever the field lines are emerging from that, it will start linking with the surface area with that. So whenever there is a production of that B into A, you will get flux. There will be change in flux. If there is change in flux, there will be induced EMF according to Faraday's law. ये जो बात समझ में आई मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुन लो, माइंड के मेमोरी कार्ड में स्टोर कर लो, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, समझ के करो। हमने कहा कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रोटेट होता है तो फील्ड लाइंस चेंज हुआ। फील्ड लाइन के चेंज होने से क्या हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया इसका मतलब सर्किट में इंड्यूस्ड करंट आ गई है। अगर आप कोई रेजिस्टेंस या यहाँ पे कोई बल्ब लगा दोगे तो ग्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो उसकी जो निडल है डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी। नाउ विल कम टू इट्स डायरेक्शन कि भाईला अगर यहाँ पे थारे को करंट मिल रहा है तो एक करंट का डायरेक्शन कितने है, मतलब इधर इसका डायरेक्शन कहाँ पे है। एंड टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वी विल यूज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो बहुत सारे बुक में ना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी लिखा है, आप कोई भी अप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा। याद ही रखना है, एक ही याद रखना है, अच्छे से याद रखो, ठीक है। बार बार टेंशन लेके पढ़ोगे तो कोई मतलब है नहीं, एक याद रख लो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स का डायरेक्शन देगा, कैसे देगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यू हैव टू यूज योर लेफ्ट हैंड विथ दिस 3 फिंगर्स। FM तो सुनते हो ना, हाँ तो FM से याद रखो ना सर, ये F है, फर्स्ट वाला जो थंब है वो F है। F मतलब फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड FM, ये बचा C करंट, FMC याद हो गया। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड देन करंट। आपको करना ही है कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन और जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो सेट कर लो, बचा हुआ आपका करंट है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या हुआ कि इधर नॉर्थ और इधर साउथ है, तो इनिशियली जब ये वाला साइड AB है, साइड AB इस तरह से है और ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। सपोज मैं ऐसे रोटेशन करा रहा हूँ, मैंने हैंडल को ऐसे चलाया है, हैंडल को अगर ऐसे आप चला रहे हो तो ये ऐसे ऊपर गया, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस, ऐसे। तो अगर ये ऐसे गया तो फिक्स है यार, फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर, राइट, ऊपर गया, फोर्स ऊपर लगा। तो अगर फोर्स वहाँ पे लगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा फोर्स FM, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये बचा क्या? करंट। सो दिस वन वाज नॉर्थ, दिस वन वाज साउथ, सो आई एम कीपिंग माय फर्स्ट फिंगर in this direction of magnetic field. This is the direction of force, this is the direction of motion of that coil AB, it is moving in upward direction. Just open this finger, this is the direction of current. मतलब कि अगर ये जो मैं इस वाले पोर्शन को 3D पिक्चर में इमेजिन करूं या फिर ऐसे आपको समझाऊं, ये A था ये B था, तो करंट कहाँ पे है? इस साइड है, टूवर्ड्स योर साइड, मतलब ऐसे चल रही करंट। अब डायग्राम में समझाऊं तो करंट मेरा ऐसे चला, राइट। So in the first situation, direction is from B to A. उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो BA था वो किसके साथ कनेक्ट था यार? रिंग 1 के साथ। सो रिंग 1 के साथ होते हुए रेजिस्टेंस में से ऐसे गया, ये ऐसे गया धबाक। फिर उसके बाद कहाँ गया? रिंग 2, और रिंग 2 किसके साथ कनेक्ट है? CD के साथ। अब अंदर घुसा, अंदर घुस के ये ऐसे चला गया। सो R1, कैपिटल R, R2 एंड देन CD. दिस इज द direction of current when you starts rotates the coil in the upward direction like this, ठीक है। अच्छा, आफ्टर द हाफ रोटेशन, ये भाई इसको रफ करो, जैसे ही तुम्हारा हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा सर,
अरे सर देखिए तो सही, अब आए हैं तो समझा के ही तो जाएंगे। हमारा नाम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। यस, फिजिक्स को ऐसे ही पागलों की तरह पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। चलिए वापस हम आपको सिखाते हैं बिग बॉस। बिग बॉस नहीं, यस, कहाँ था मैं, पागलपंती। हाँ, हाफ रोटेशन, वापस आ गया मैं। तो हाफ रोटेशन जैसे यार हाफ रोटेशन होगा, सोचना क्या होगा, ये वाला कॉइल ऐसे टर्न लेकर के, मतलब कॉइल नहीं यार, साइड, ये वाला साइड इधर आ गया, मतलब कि ये ऐसे टर्न मार दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एथे कौन आ गया, ये आ गया सी डी। ये जो साइड ए बी था इसने ऐसे रोटेशन किया, हाफ रोटेशन, पूरा फुल रोटेशन नहीं, हाफ रोटेशन करके ये यहाँ पहुँचा, और ये सी डी इधर आ गया, ये सी डी आ गया, और ये क्या हो गया, ए बी। तो अगर अब ए बी वैसे आ गया तो अभी भी तो करंट तो वैसे ही फ्लो करनी है। करंट वैसे ही क्यों फ्लो करेगा उसका रीज़न भी देख लो। अब अगर ए बी इधर आया, इधर, अब ए बी जाएगा कहाँ पे, नीचे जाएगा, क्योंकि आप हैंडल को ऐसे घुमा रहे हो। अब ए बी नीचे जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ये रहा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। ये सब आप ट्राई करना, जब आप वीडियो देख रहे हो तो बीच में आप रोक करके फिर जैसे मैं कर रहा हूँ ट्राई करना, एक बार फील कर लोगे ना फिर बड़ा मज़ा आने वाला। सही बोल रहा हूँ। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and this is the direction of force, because that AB will move in the down। जैसे ये AB यहाँ पर आ गया वो नीचे जाएगा। and where is the direction of that current, where is the direction of that current, दिखेगा वीडियो में। अच्छा ये रहा, ये ऐसे, वो उस साइड हो गया, बिकॉज थंब इधर है, ये इधर है, तो ये हमारा इस तरफ है, पता चल गया। हाँ, इसको हम ऐसे बताएं तो नहीं, ऐसे ही सही है। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूविंग डाउनवर्ड, और ये जो डायरेक्शन हो गया वो करंट का डायरेक्शन हो गया। मतलब कि ये अब ऐसे चल रहा है, ऐसे देखो, यहाँ पे जैसा है वैसा ही है। मतलब पहली सिचुएशन में करंट ऐसी थी, जैसे ये यहाँ पहुँच गया ये ऐसे चल रहा है। अब अगर ये ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये वाला पोजीशन यहाँ पर आया और डायरेक्शन ऐसा शिफ्ट हो गया। मैं आपको पूरा बना के दिखा रहा हूँ, मतलब कंफ्यूज मत होना। आफ्टर हाफ रोटेशन ये इधर आ गया, और फिर ये ऐसे, ये लीजिए, ये हमारा था स्लिप रिंग 1, स्लिप रिंग नंबर 2, और यहाँ पे लगा है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये सी डी। हाँ ओके, ये डी और फिर ये सी। अब जरा देखिए करंट कैसे चल रहा है। ये इधर आया तो फिर डायरेक्शन उधर हो गया। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, अब करंट का डायरेक्शन है ए से बी, ए से बी है, उसके बाद सी से डी, फिर ये जो सी डी पोर्शन था, सी डी पोर्शन वो किसके साथ कनेक्ट था, रिंग 2 के साथ। इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की है। तो अब इसमें से आया, इसमें से ऐसे आते हुए ये ऐसे चला गया। कंफ्यूज ना होना, ये जो रिंग थे ना, स्लिप रिंग, वो नहीं चेंज हुए हैं, बिकॉज उनका तो काम है सिर्फ सर्कुलेट होना। चेंज कौन हुआ, ए बी इधर आ गया, और इधर कौन आ गया, सी डी। जब ए बी इधर आया तो डायरेक्शन देखो पहले ऐसे था, ठीक है, अब डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो जब डायरेक्शन ऐसे हुआ तो यहाँ से सी से डी होते हुए मोस्ट ऑफ लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक्सप्लेन जो करता है वो भी ऐसे ही बता देता है गलत गलत। ये ऐसे अंदर आया, और सी डी पहले से किसके साथ कनेक्ट था, सी डी कनेक्ट है रिंग 2 के साथ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सी डी कनेक्ट था रिंग 2 के साथ, और ए बी वॉज कनेक्टेड विथ रिंग 1। दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजिशन, है ना। तो अब सी डी से करंट होते हुए, जो कि ए से बी स्टार्ट हुई है, सी डी से करंट होते हुए रिंग 2 में आई, और रिंग 2 से होते हुए रजिस्टर आर से फिर अंदर गया। इसका मतलब है कि पहले रेजिस्टेंस में देखिए करंट ऐसे चल रहा था, और अब रेजिस्टेंस में करंट ऐसे है। पहले था R1 टू R2, और पहले था R1 से, यस इट वाज फ्रॉम R1 टू R2, एंड नाउ फ्रॉम R2 टू R1, बाकी सब सेम है, R2 टू R1। सो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डिफरेंट। इस साइड है तो इस साइड हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट अ DC करंट, this is called your AC current. After every half rotation the sign of current will be changed,
and whenever the sign of direction of current is being changed, this is a kind of AC current, and that's why this kind of production of electricity is called AC generator. Got it? तो इस तरह से AC जनरेटर काम करता है, रोटेशन होती है, और जब जब रोटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी कम कभी ज़्यादा लिंक हुई, फ्लक्स चेंज हुआ। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू हमारे फैराडे बाबा, उन्होंने कहा है कि भैया कहीं पे भी फ्लक्स चेंज होगा आपको EMF मिलने वाला है, और अगर EMF मिल गया इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर वाला लगा दीजिए, वहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, एंड इफ देयर इज अ डिफ्लेक्शन दैट मीन्स देयर इज अ करंट. So let's discuss on the derivation or the main formula of this AC generator. ओके तो ये हैंडल से जो आपने इसको रोटेशन किया, तो जब ये ऐसे रोटेट हुआ तो सपोज़ इसका जो रोटेशन का स्पीड है, वेलोसिटी है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी, बट वो घूम रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड different kind of velocity which is always used in rotational motion, and that is called angular velocity. So suppose the angular velocity is omega, right? So when this coil starts rotating with the velocity of omega, so according to the formula of flux we know that phi is equal to B dot A, where B is your magnetic field, A is the area link with that surface. Now when you remove the dot you have to use cos theta, it is a kind of scalar product. Now we know that omega angular velocity is angular displacement upon time. जैसे v is equal to distance upon time है, displacement upon time है, for that displacement we will say angular displacement, and for the angular displacement there will be theta. So theta by t, make theta subject, theta is equal to omega t. We'll place that theta as omega t, so we have VA cos omega t. But because of the n turns in this rectangular coil, or can say armature, we will write phi is equal to NBA एंड कॉस ओमेगा टी. ये जो है वो एक टर्न्स के लिए है, ऐसे 2 टर्न्स होंगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, n टर्न्स है देन यू शुड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद n. नाउ वी नो दैट फैराडेस लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, द चेंज इन फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF. So minus d upon dt, here is the value of flux, that is NBA cos omega t, and when we differentiate this equation of cos, तो cos का रिजल्ट क्या होता है, माइनस साइन, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन लिखा, और t के साथ कांस्टेंट में क्या है, ओमेगा. तो ये डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको आपको बाहर लेना पड़ेगा, तो t के साथ ओमेगा बाहर आ गया. यू कैन सी दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, सो NBA ओमेगा साइन ओमेगा t. अच्छा ये देखिए, ये है ना कांस्टेंट टर्म्स हैं NBA ओमेगा. सो साइन और कॉस के पहले जो टर्म्स होते हैं वो एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब पिक वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट आई कैन टेक दिस NBA ओमेगा एस EM. बहुत सारे रेफरेंस बुक में दिया है, और JEE नीट के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसे याद रखें, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड एंगुलर वेलोसिटी है, तो डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई टू गेट द मैक्सिमम EMF. ओके जब इस रेजिस्टेंस कैपिटल R को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, देन यू कैन यूज ओम्स लॉ, that is I is equal to E upon R. Here we have E is equal to EM sin omega t upon R. Now VM upon R, a kind of maximum voltage upon R, is said to be the maximum current, and this is the main equation of that AC generator voltage. So this is E is equal to EM sin omega t, and it's done from today's class. And if you are liking the concept of this channel, then do one thing, please subscribe it. और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उनको हेल्प मिलेगी, और हम चाहते ही यही है, बिकॉज़ हमारा ये एम है कि फ़िज़िक्स सभी के लिए आसान हो जाए और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, लोग ऐसे ही मुस्कुराहट के साथ फ़िज़िक्स पढ़ें. तो खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़.